IMF پروگرام کی بحالی معیشت کے لیے اہم ہے، لیکن یہ منزل نہیں، ایک مرحلہ ہے جو ملک کو معاشی بحالی کے راستے کی طرف لے کر جائے گا۔ معاشی زنجیروں کے چنگل سے نجات کا واحد راستہ ڈھانچہ جاتی اصلاحات ہے۔ معاشی خود انحصاری کے لیے ہمیں دن رات محنت کرنا ہوگی۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف کا ٹویٹ۔ IMF سے توسیعی فنڈ کی سہولت کے تحت 1 ارب 17 کروڑ ڈالر کی قسط کے اجرا سے دوسرے عالمی مالیاتی ادارے اور ترقیاتی شراکت دار بھی پاکستان کو فنڈنگ کریں گے۔ نئی پیش رفت سے پاکستانی روپیہ مضبوط اور بیرونی شعبے میں استحکام کے ساتھ سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہوگا۔ اقتصادی بحالی کے حکومتی اقدامات کے خوشگوار اثرات۔ ڈالر کی قیمت میں 1 روپیہ 42 پیسے کمی، سٹاک مارکیٹ میں تیزی، کاروبار کے آغاز پر 345 پوائنٹس کا اضافہ، ٹریڈنگ 42,850 پر پہنچ گئی۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت حکومتی اتحادی جماعتوں کا مشترکہ اجلاس، مسلح افواج کے سربراہان، وزیر اعلیٰ بلوچستان، صوبائی چیف سیکرٹریز، وفاقی وزراء اور اعلیٰ حکام کی شرکت۔ سیلاب کی صورتحال سے نمٹنے اور متاثرین کی بحالی کے لیے نیشنل فلڈ ریسپانس اینڈ کوآرڈینیشن سینٹر قائم کرنے کا فیصلہ۔ سیلاب کی تباہ کاریاں، مزید 75 افراد جاں بحق، مجموعی تعداد 1136 ہو گئی۔ متاثرہ خاندانوں کو امدادی رقوم پہنچانے کا کام تیزی سے جاری۔ اب تک 18 ارب روپے سے زائد تقسیم ہو چکے ہیں۔ سندھ اور بلوچستان کے متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں، متاثرین میں خوراک، ادویات، خیمے، مچھردانیاں اور ضروری اشیاء کی تقسیم، میڈیکل کیمپس میں علاج معالجے کی فراہمی۔ چین کا متاثرین سیلاب کے لیے 10 کروڑ یوان امداد کرنے کا اعلان۔ 25,000 خیمے اور دیگر امدادی اشیاء لے کر چینی فضائیہ کی خصوصی پروازیں آج اور کل کراچی پہنچیں گی۔ چین کے صدر اور وزیر اعظم کا سیلاب سے جانی اور مالی نقصانات پر پاکستانی قیادت اور عوام سے افسوس اور بھرپور یکجہتی کا اظہار۔ پاکستان اور اقوام متحدہ سیلابی صورتحال پر آج عالمی برادری سے مشترکہ فلیش اپیل کریں گے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اس موقع پر خطاب کریں گے۔ تقریب میں UN سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کا ویڈیو پیغام بھی سنایا جائے گا۔ پاکستان اور اقوام متحدہ کی عالمی برادری سے انسانی بنیادوں پر فوری امداد کی اپیل۔ پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم کی نیو یارک میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے ملاقات۔ پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم کی نیو یارک میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے ملاقات۔ پاکستانی مندوب نے عالمی ادارے کے سربراہ کو پاکستان میں حالیہ سیلاب کی تباہ کاریوں کے بارے میں آگاہ کیا۔ انتونیو گوتریس کی مشکل کے اس وقت میں پاکستان کی مدد کرنے کی یقین دہانی۔ کینیڈا کے وزیر اعظم کا سیلاب زدگان کے لیے 50 کروڑ ڈالر کی اضافی امداد دینے کا اعلان۔ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر متاثرین سیلاب کی امداد وقت کی ضرورت ہے۔ امداد متاثرین کی بحالی کے لیے ہمارے شراکت دار فلاحی اداروں کی جاری کوششوں میں مدد دے گی۔ کینیڈین وزیر برائے بین الاقوامی ترقی۔ عالمی برادری کا جذبہ خیر سگالی، متحدہ عرب امارات سے تیسرا طیارہ امدادی سامان لے کر پہنچ گیا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے UAE حکام کا رابطہ، امدادی سامان کے 20 جہاز بھیجنے کا وعدہ۔ ترکیہ سے بھی امدادی سامان لے کر 4 طیارے پاکستان پہنچ گئے۔ چین سے 2 طیارے پاکستان پہنچیں گے۔ بحرین اور جاپان کا بھی امدادی سامان بھیجنے کا اعلان۔ پوپ فرانسس کی عالمی برادری سے پاکستان کے سیلاب متاثرین کی امداد کی اپیل۔ آرمی چیف آج سوات کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کریں گے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کو ریلیف اور ریسکیو سرگرمیوں پر بریفنگ دی جائے گی۔ کمراٹ،
کالام اور گرد و نواح میں پھنسے سیاحوں کو ریسکیو کرنے کے حوالے سے آگاہ کیا جائے گا۔ سیلاب سے متاثرہ مختلف علاقوں میں پاک فوج کی ریسکیو ریلیف سرگرمیاں جاری۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران سیلاب میں پھنسے 316 افراد کو نکال لیا گیا۔ متاثرین میں راشن اور 250 خیمے تقسیم کیے گئے۔ 51 فری طبی کیمپوں کے ذریعے 33,025 مریضوں کا علاج بھی کیا گیا۔ اشیاء ضروریہ اکٹھا کرنے کے لیے 217 کیمپس قائم۔ پاک بحریہ کا بدین کے علاقے ماتلی میں سیلابی پانی میں محصور افراد کے لیے ریلیف آپریشن۔ پاک بحریہ نے بدین میں پھنسے 300 متاثرین کو راشن اور ضروری اشیاء فراہم کی۔ 2 روز سے سیلابی پانی میں پھنسے افراد مختلف ذرائع سے مدد کی درخواست کر رہے تھے۔ پاک بحریہ نے سیلاب زدگان کی درخواست پر فوری عمل درآمد کرتے ہوئے بنیادی اشیاء ضرورت فراہم کی۔ پاک فضائیہ کے سربراہ کی تمام بیسز کو سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امدادی مہم مزید تیز کرنے کی ہدایت۔ اسلام آباد میں فوکل پوائنٹس قائم۔ مؤثر انتظام کے لیے ریجنل ایئر کمانڈز کے تحت 3 ریلیف زونز بھی قائم۔ دور دراز علاقوں تک فوری رسائی کے لیے 25 ہیلی کاپٹرز اور 8 C-130 طیارے استعمال کیے جائیں گے۔ اداروں کو بغاوت پر اکسانے کا الزام۔ اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ نے پی ٹی آئی رہنما شہباز گل کی درخواست ضمانت خارج کر دی۔ ملزم شہباز گل کو 9 اگست کو بنی گالہ سے گرفتار کیا گیا تھا۔ کرونا وائرس سے متاثرہ 111 افراد کی حالت اب بھی تشویشناک۔ گزشتہ روز 12,671 ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 170 کیسز مثبت رپورٹ ہوئے۔ مثبت کیسز کی شرح 1.34 رہی۔ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ عالمی ادارہ صحت، قومی ادارہ صحت۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کا دنیا بھر میں مقیم کشمیری عوام سے بابائے حریت سید علی گیلانی کی پہلی برسی کے موقع پر مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے جرائم کو بے نقاب کرنے کے لیے جمعرات کو احتجاجی مظاہرہ کرنے کی اپیل۔ ہندو دہشت گرد ریاست بھارت میں اقلیتوں کے لیے عبادات اور مذہبی رسومات ادا کرنا بھی محال۔ اتر پردیش میں ایک گھر میں باجماعت نماز ادا کرنے پر 26 مسلمانوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ متحدہ عرب امارات میں T20 ایشیا کپ تیسرے میچ میں افغانستان اور بنگلہ دیش کی ٹیمیں آج مد مقابل ہوں گی۔ میچ شام 7 بجے سے PTV سپورٹس HD پر براہ راست۔ قومی T20 کپ کا آغاز راولپنڈی میں پہلا مرحلہ۔ افتتاحی میچ میں صدرن پنجاب کی سندھ کے 148 رنز کے ہدف کے تعاقب میں بیٹنگ جاری۔ میچ دیکھیے PTV سپورٹس پر براہ راست۔ اور سرپرائز کیا لیم کے ذریعے اور یہاں اور سال کا چوتھا اور آخری ٹینس گرینڈ سلیم US اوپن کا آغاز۔ امریکہ کی سرینا السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ دن 12 بجے کے خبرنامے کے ساتھ میں ہوں ہما ملک اور میں ہوں شاہد نسیم۔ اہم خبریں آپ نے ملاحظہ کی۔ خبرنامے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ IMF پروگرام کی بحالی معیشت کے لیے اہم ہے، لیکن یہ منزل نہیں، ایک مرحلہ ہے جو ملک کو معاشی بحالی کے راستے کی طرف لے کر جائے گا۔ اپنے ایک ٹویٹ میں وزیراعظم نے کہا کہ معاشی زنجیروں کے چنگل سے نجات کا واحد راستہ ڈھانچہ جاتی اصلاحات ہیں۔ معاشی خود انحصاری کے لیے ہمیں دن رات محنت کرنا ہوگی۔ IMF سے توسیعی فنڈ کی سہولت کے تحت 1 ارب 17 کروڑ ڈالر کی قسط کے اجرا سے دوسرے عالمی مالیاتی ادارے اور ترقیاتی شراکت دار بھی پاکستان کو فنڈنگ کریں گے۔ اس سے پاکستانی روپیہ مضبوط اور بیرونی شعبے میں استحکام کے ساتھ سرمایہ کاروں کا اعتماد بھی بحال ہوگا۔ اس بارے میں ماہرین کیا رائے رکھتے ہیں، دیکھتے ہیں رانا افتخار احمد کی رپورٹ میں۔
اتحادی حکومت اس سال اپریل میں جب اقتدار میں آئی تو ملک کو ادائیگیوں کے عدم توازن، کرنٹ اکاؤنٹ اور تجارتی خسارے سمیت معاشی میدان میں کئی چیلنجز کا سامنا تھا، جن سے نمٹنے اور اقتصادی بحالی کے لیے حکومت نے مربوط ایجنڈے پر کام شروع کیا۔ حکومتی معاشی ٹیم 3 ماہ کی مسلسل کوششوں سے IMF سے سٹاف لیول معاہدہ کرنے میں کامیاب ہوئی۔ اچھا وقت بھی آتا ہے، برا وقت بھی آتا ہے، اور جب برا وقت آتا ہے تو سب جڑ جاتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس ملک کو اس بحران سے واپس کیسے نکالنا ہے۔ IMF کا لون اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے جتنا لوگوں کو بتانا ضروری ہے کہ جو ریفارمز پاکستان میں ہوئی ہیں اور جو ہو رہی ہیں وہ انٹرنیشنل لیول پہ ہیں۔ آئل کی پرائسز نیچے آ گئیں جس سے پاکستان کا امپورٹ برڈن کم ہو گیا۔ کچھ ان کی ٹائملی ایکشنز تھے جس پہ IMF کا بہت بڑا کردار تھا، جو کہ پاکستان کو ایز اے بینک، کوئی بھی بزنس کسی بینک کی ڈسپلن کے بغیر نہیں چل سکتا۔ تو اللہ کا شکر ہے اس وقت پاکستان الحمدللہ ایک کمفرٹیبل پوزیشن میں آ چکا ہے۔ 7ویں اور 8ویں جائزے کے معاملات طے پانے کے بعد IMF بورڈ نے پاکستان کو 1 ارب 17 کروڑ ڈالر جاری کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ اب عالمی مالیاتی ادارے اور ترقیاتی شراکت دار بھی پاکستان میں سرمایہ کاری کریں گے، جس سے ملکی معیشت پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ اس سے آپ کی ریٹنگ میں بھی اضافہ ہوگا، جس کو ہم فائنینشیل پوزیشن کہتے ہیں۔ اس فائنینشیل پوزیشن کی میں امپروومنٹ کی وجہ سے جو دوسرے ڈونرز ہیں، ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، یہ بھی پھر آپ کو آسانی کے ساتھ قرض دینے کے اوپر رضامند ہو جاتے ہیں۔ IMF کے ساتھ جو آپ کا ایگریمنٹ ہے اس کا امپیکٹ انویسٹر کے کانفیڈنس پہ آتا ہے، آپ کی پرائسز، دوسرے جو آپ کے ڈیولپمنٹ پارٹنرز ہیں تو وہ زیادہ کانفیڈنٹ فیل کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے آبویسلی اکانومی کے اوپر، ڈالر کی پرائس کے اوپر ایک پازیٹیو امپیکٹ آئے گا۔ جامع اور پائیدار بنیادوں پر سماجی اور معاشی ترقی کے لیے تمام شعبوں میں بہتری کے ساتھ سماجی تحفظ اور مؤثر گورننس پر بھی توجہ دینا ہوگی۔ اس کے ساتھ طویل المدت معاشی پالیسیاں اپنا کر خود انحصاری کی جانب بڑھنا ہوگا۔ رانا افتخار احمد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ IMF سے معاہدے کے اثرات۔ آج روپے کے مقابلے میں ڈالر کے ریٹ میں کمی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ ڈالر اب تک 1 روپے 92 پیسے سستا ہو گیا ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر اس وقت 220 روپے پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں ایکسچینج ریٹس ایسوسی ایشن آف پاکستان کے جنرل سیکرٹری ظفر پراچا۔ بہت شکریہ ظفر پراچا صاحب آپ کا پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کو وقت دینے کے لیے۔ بتائیے گا IMF معاہدے کے بعد روپے کی قدر میں مزید کیا بہتری آ سکتی ہے؟ دیکھیے جناب، ایک تو اوپن مارکیٹ میں آج تقریباً 5 روپیہ ڈالر کم ہوا ہے۔ اس وقت ہم لوگ 225 روپے میں ڈالر بیچ رہے ہیں، اور انٹر بینک کے اندر 2 روپے کم ہوا ہے۔ تو یہ جو IMF معاہدے کے بعد جو ہے ڈالر، میں سمجھتا ہوں کہ 200 روپے کے قریب آ جانا چاہیے، اگر کوئی ہمارے ہاں کوئی اور دیگر چینج نہیں آتی۔ گو کہ یہ 1.15 بلین ڈالر ہے، جس کی اماؤنٹ کچھ بھی نہیں ہے، بہت چھوٹی ہے۔ ہاں، اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر ہمارے دوست ممالک ہیں ان سے جو ہمیں پیسے آنے ہیں وہ سب ملا کے بھی کوئی اتنا بڑا اماؤنٹ نہیں ہے کہ ہماری اکنامی بالکل ایز ہو جائے یا ہم لوگ عید ہو جائیں۔ تو ہم کو مسلسل اس کے لیے کام کرنا ہوگا۔ ہم کو اپنی ایکسپورٹ امپورٹ کے برابر لانی ہوگی، یا اپنی امپورٹ کم کر کے ایکسپورٹ کے برابر لانی ہے۔ پھر اس کے بعد ہم کو اپنے جو ایکسپینڈیچر ہیں وہ اپنے ریونیو کے ساتھ کیپ کرنے ہوں گے۔ اگر وہ ہم اس کے ساتھ کیپ نہیں کریں گے تو ہمارے لیے زیادہ اچھا ٹائم نہیں ہے آگے بھی، کیونکہ یہ جو اس سال ہم نے تقریباً 40 بلین ڈالر واپس کرنے ہیں، اور ابھی تک ہمارے پاس جو ہم آ رہے ہیں 10 بلین ڈالر کے قریب آنے ہیں۔ باقی 30 بلین کے بھی حکومت کہتی ہے کہ ہم نے ارینجمنٹ کیے ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا کہ اس وقت جو سیاسی پارٹیاں ہیں ان کا رول بہت خراب ہے۔ پچھلے دنوں ہم نے جو دیکھا، یہ جو ایک خط لکھا گیا، یا اوور آل جو سیاسی پارٹیاں ہیں ان کا کوئی ملک کے ساتھ یا عوام کے ساتھ کوئی سنسیریٹی نظر نہیں آتی ہے۔ تو تمام سیاسی پارٹیوں کو چاہیے کہ ایک پیج پہ بیٹھیں، ایک میز کے اوپر ایک نقطہ ہونا چاہیے، معیشت کی بحالی، کیونکہ یہ سب سیاست بھی نہیں ہونی چاہیے، الیکشن بھی نہیں ہونے چاہیے۔ اگر یہ نہیں کریں گے تو کوئی اتنے اچھے حالات نہیں ہیں۔ یہ وقتی طور پہ ہم کو ایک سہارا ملا ہے، تو اس سہارے کو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو بہتر انداز میں، بہتر طریقے سے حل کریں، مس مینجمنٹ نہ کریں۔ کیونکہ اگر ہم دیکھیں خطے میں ہماری کرنسی سب سے زیادہ ویک ہے۔ میں اگین یہ بات کہوں گا کہ جو ہمارے فائنینشیل کریڈینشلز ہیں وہ اتنے خراب نہیں ہیں، وہ بہت اچھے ہیں، لیکن ساری بات ہے مس مینجمنٹ کی، کیونکہ ہمارے ہاں اس وقت ریکارڈ ریونیو جمع ہو رہا ہے۔
اگر ہم ان کو اپنے جو ایکسپینڈیچرز ہیں ان کو کنٹرول نہیں کریں گے، خاص طور پہ پارلیمنٹیرینز کے جو ثوابدیدی فنڈ ہیں یا شاہانہ خرچے ہیں یا جو ہماری کارپوریشنز ہیں بڑی بڑی سرکاری، وہ بوجھ ہے ہمارے پہ بہت بڑی، تو ہم کو ان کو یا تو پرائیویٹائز کرنا ہے یا لیز پہ دینا ہے، جو بھی کرنا ہے امیجیٹ کرنا ہے. اور یہ جو ہمارے یہاں ڈالر کا اس وقت ریٹ ہے یہ بھی اتنا نہیں ہونا چاہیے. اگر ہم بہت زیادہ اس کو ہم دیکھیں تو اس وقت 190 روپے سے اوپر ڈالر کا ریٹ نہیں ہونا چاہیے، اور لانگ ٹرم میں 160 روپے کا. اس کے لیے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ریجن میں ہم دیکھیں افغانستان جیسا تباہ حال اور جنگ زدہ ملک، وہاں پہ بھی 90 روپے کا افغانی ایک ڈالر ہے، اور انڈیا میں تقریباً 80 روپے کا ہے، بنگلہ دیش میں 85 روپے کا ہے. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وہاں پہ بھی ہماری وجہ سے 5-6 روپے ڈالر کا ریٹ زیادہ ہے، کیونکہ وہ ہمارے کئی جگہ کمپٹیٹر ہیں، ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں ان کے ساتھ، تو ان کو ہماری وجہ سے اپنی کرنسی نیچے لانی پڑتی ہے. بالکل صحیح. بہت شکریہ، ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے اور اس حوالے سے اپنا جو اوپینین ہے، جو اپنی رائے ہے، وہ ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے ظفر پراچا، جنرل سیکرٹری ایکسچینج ریٹس ایسوسی ایشن آف پاکستان. آپ کا پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کو وقت دینے کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، آگے بڑھتے ہوئے یہاں پر آپ کو بتائیں کہ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے آڈیو لیکس کو پاکستان کی معیشت کو عدم استحکام سے دوچار کرنے کی سازش کا ثبوت قرار دے دیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ ایک منظم سازش ہے جو عمران خان سے شروع ہو کر صوبائی وزیر خزانہ تک آتی ہے. یہ ٹولہ 4 ماہ سے جاری محنت کو سبوتاژ کرنے کی سازش کر رہا تھا. خط کا صرف ایک مقصد تھا کہ IMF پروگرام منظور نہ ہو سکے. یہ ملک کی معیشت کو تباہ کر کے عوام پر مزید بوجھ ڈالنے کی گھناؤنی سازش تھی، جس پر عمران خان اور تمام سازشی کرداروں کو جواب دینا پڑے گا. شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ شوکت ترین سمیت عمران خان کی ٹیم نے 4 برس پاکستان کی معیشت کو تباہ کیا. دونوں آڈیو لیک سے واضح ہے کہ سابق وفاقی وزیر خزانہ 2 صوبوں کے وزراء خزانہ کو خلاف خط لکھنے کا کہہ رہا ہے. انہوں نے کہا کہ شوکت ترین جیسے شخص نے جانتے بوجھتے ہوئے IMF پروگرام کو دھچکا پہنچا کر ملک کی معیشت کو نقصان پہنچانے کی سازش کی ہے. حکومتی اتحادی جماعتوں کے مشترکہ اجلاس میں باہمی مشاورت کے بعد ملک میں سیلاب کی صورتحال سے نمٹنے اور متاثرین کی بحالی کے لیے نیشنل فلڈ ریسپانس اینڈ کوارڈینیشن سینٹر قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں سیلاب کے دوران جام حق ہونے والوں کے لیے فاتحہ خوانی اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کی دعا کی گئی. وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ یہ سینٹر ہنگامی حالات سے نمٹنے کے اداروں، ڈونرز اور حکومتی اداروں کے درمیان رابطے کا کام کرے گا. وفاقی وزراء، مسلح افواج کے نمائندوں، وزرائے اعلیٰ اور ماہرین پر مشتمل اس سینٹر کی سربراہی وزیر اعظم کریں گے. اجلاس نے وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں سیلاب متاثرین کے ریسکیو، ریلیف کے لیے ہنگامی اقدامات، سیلاب زدہ علاقوں کے مسلسل دوروں اور بلا تعطل معاونت کی فراہمی کی انتھک کوششوں کو سراہا. وفاق کی جانب سے فوری طور پر سیلاب زدگان کی مدد کے لیے NDMA کو 5 ارب روپے، سندھ کے لیے 15 ارب، بلوچستان کو 10 ارب کی خصوصی گرانٹ کے علاوہ ہر جم حق فرد کے اہل خانہ کو 10 لاکھ روپے دینے، زخمیوں، مکانات سمیت دیگر نقصانات پر زیر تلافی کی ادائیگی پر خراج تحسین پیش کیا گیا. اجلاس نے اس امداد کے علاوہ فوری طور پر سیلاب سے متاثرہ ہر شخص کو 25,000 روپے نقد رقم کی فراہمی کے وزیر اعظم کے اقدام کو سراہا. اجلاس نے سیلاب متاثرین کی داد رسی اور دیکھ بھال کے لیے وفاقی اور صوبائی حکومتوں، آرمی، نیوی، فضائیہ اور اس سمیت ہنگامی امداد کے اداروں، انٹرنیشنل پارٹنرز، بین الاقوامی برادری، اقوام متحدہ اور دوست ممالک کا شکریہ ادا کیا اور امید ظاہر کی کہ وہ سیلاب زدگان کی امداد و بحالی کے عمل میں بھرپور معاونت کریں گے. اجلاس نے اس تجویز کی تائید کی کہ سیلاب سے بڑے پیمانے پر ہونے والی تباہی کو مد نظر رکھتے ہوئے قومی سطح پر تعمیر نو کا جامع پلان مرتب کیا جائے. وفاقی حکومت کی رہنمائی میں صوبائی حکومتوں اور اداروں کی مشاورت سے نقصانات کے حتمی تخمینے کا کام شفاف انداز میں مکمل کیا جائے اور ساتھ ہی ساتھ متاثرین کی دوبارہ آباد کاری کے لیے وقت کے واضح تعین کے ساتھ مؤثر منصوبہ بندی کی جائے. اجلاس نے اس تجویز کی بھی تائید کی کہ موسمی تغیرات سے لاحق خطرات اور موجودہ حالات سے سبق سیکھتے ہوئے مستقبل کے لیے جامع حکمت عملی تیار کی جائے تاکہ پیش کی تیاری یقینی بنانے کی حتی المقدور کوشش کی جا سکے. اجلاس میں اس بات پر زور دیا گیا کہ دریاؤں اور آبی گزرگاہوں میں غیر قانونی تعمیرات کو ختم کرنے کے علاوہ انتظامی مشینری کی صلاحیت اور استعداد کار بڑھانے کے لیے ضروری اقدامات کیے جائیں اور سیلابی پانی کو محفوظ بنانے کے لیے منصوبہ بندی کی جائے. ترجمان دفتر خارجہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ پاکستان فلڈ رسپانس پلان کا مشترکہ اعلان اسلام آباد اور جنیوا سے بیک وقت کیا جائے گا. وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری فلیش اپیل کے موقع پر خطاب بھی کریں گے اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کا تقریب میں ویڈیو پیغام بھی سنایا جائے گا.
पाकिस्तान और अक़वाम मुत्तहिदा आलमी बरादरी से इंसानी बुनियादों पर फौरी इमदाद की अपील करेंगे। जिनीवा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब और बैन अल-अक़वामी रेड क्रॉस फेडरेशन और रुकन ममालिक भी शरीक होंगे। पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात, तुर्किया और चीन से मजीद इमदादी तैयारे आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इमदादी सामान में खैमे, अद्वियात, खाने पीने की अशिया और दीगर ज़रूरी सामान शामिल है। तर्जुमान का कहना है कि तैयारों की पाकिस्तान आमद इमदादी सामान की तरसील के लिए तश्कील करदा एयर ब्रिज का हिस्सा है। इन ममालिक की जानिब से इमदादी सामान भेजने का खैर मकदम करते हैं। और दोस्त मुल्क चीन ने भी पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन के लिए 10 करोड़ युआन इमदाद करने का ऐलान किया है। 25,000 खैमे और दीगर इमदादी अशिया भी चीन की तरफ से अतिया की गई हैं। चीनी फजाइया की परवाजें 300 खैमों की पहली खेप लेकर आज और कल कराची पहुंचेंगी। चीनी क़यादत ने पाकिस्तान में सैलाब से जानी और माली नुकसानात पर पाकिस्तान की क़यादत और अवाम से अफसोस और भरपूर यकजहती का इजहार किया है। चीन के सदर और वज़ीर-ए-आज़म का पैगाम पाकिस्तान में चीन के सफ़ीर नॉन्ग रॉन्ग ने पाकिस्तानी क़यादत को पहुँचाया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने चीन के सदर शी जिनपिंग और वज़ीर-ए-आज़म ली कीचियांग के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया और कहा कि हमेशा की तरह चीन की क़यादत और अवाम ने पाकिस्तान दोस्ती और फराग दिली का मुजाहरा किया। हम सदर शी जिनपिंग और वज़ीर-ए-आज़म ली कीचियांग का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। पाकिस्तान में चीन के सफ़ीर नॉन्ग रॉन्ग कराची में इमदादी सामान पाकिस्तानी हुकाम के हवाले करेंगे। अमरीकी अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डेरेक शोले ने पाकिस्तान में हालिया सैलाब से कीमती जानों के ज़िया और इमलाक के नुकसान पर अफसोस का इजहार किया है। सफ़ीर पाकिस्तान मसूद खान के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान डेरेक शोले का कहना है कि मुश्किल की इस घड़ी में अमरीका पाकिस्तान के साथ खड़ा है। सफ़ीर पाकिस्तान ने सैलाब ज़दगान के साथ इज़हार यकजहती पर डेरेक शोले का शुक्रिया अदा किया। बातचीत के दौरान पाक अमरीका ताल्लुकात, तिजारत, सरमायाकारी, अवामी रवाबित और तबादलों पर बातचीत हुई। पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। अमरीकी सेनेट की खारजा ताल्लुकात कमेटी के रैंकिंग मेंबर सेनेटर जिम रिश ने भी सैलाब ज़दगान से हमदर्दी का इजहार किया है। अपने ट्विटर में पैगाम में सेनेटर रिश का कहना है कि हम इस मौके पर पाकिस्तान के साथ हैं और सैलाब मुतासरीन के लिए दुआगो हैं। दीगर अमरीकी रहनुमाओं बशमूल सेनेटर टेड क्रूज और कांग्रेस विमेन शीला जैक्सन ने भी सैलाब मुतासरीन के साथ इज़हार यकजहती का इजहार किया है। शीला जैक्सन ने अमरीकी सदर के नाम खत में पाकिस्तान में सैलाब से मुतासर अफराद की फौरी तौर पर माली और तकनीकी मुआवनत की दरख्वास्त की है। न्यूयॉर्क में सफ़ीर पाकिस्तान ने एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ पाकिस्तान डेंटिस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका के ज़ेर तमाम फंड रेजिंग तकरीब में शिरकत करके एहतियात की अपील की है। मसूद खान ने न्यूयॉर्क में मुनाकिदा पाकिस्तान की यौम आज़ादी की परेड में भी शिरकत की, जहां उन्होंने पाकिस्तानी नजात अमरीकी कम्युनिटी से पाकिस्तान में हालिया सैलाब से मुतासर अफराद की इमदाद की अपील की है। शिकागो के दौरे के दौरान सफ़ीर पाकिस्तान ने शिकागो लैंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर और CEO जैक लियोन से मुलाकात की है और उन्हें पाकिस्तान में सैलाब से होने वाली तबाही से मुतालिक आगाह किया। सफ़ीर पाकिस्तान का कहना है कि तालीम, ज़राअत, सेहत और टेक्नोलॉजी के शोबे गेम चेंजर हैं और इन शोबाजात में दोनों ममालिक की कारोबारी बरादरी के दरमियान शराकत कायम करने के वसी मौक़े भी मौजूद हैं। सफ़ीर पाकिस्तान मसूद खान ने शिकागो में मुकीम पाक अमरीकन कम्युनिटी के अरकान से भी मुलाकात की और उन पर जोर दिया है कि वो आगे बढ़ें और अपने भाइयों और बहनों की मदद करें जो तबाही के सदमे से गुजर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने पाकिस्तान में सैलाब से तबाही पर अफसोस का इजहार किया है। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात हुई। इस मौके पर UN सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि आलमी बरादरी से खुसूसी अपील करेंगे कि पाकिस्तान की मदद की जाए जिससे पाकिस्तान में बहाली और तामीरी नौ का अमल मुमकिन बनाया जा सके। मुलाकात में मुनीर अकरम ने पाकिस्तान में सैलाब से अमवात और होने वाले नुकसानात से मुतल्लिक आगाह किया, जिस पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। नाज़रीन, पाकिस्तान में सैलाब और बारिशों से होने वाली तबाही और सैलाब ज़दगान की इमदाद और बहाली के लिए पाकिस्तान हाई कमीशन ओटावा में मकामी तंजीमों के अहदेदारों का इजलास हुआ। इजलास में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ज़हीर जंजुआ ने शुरका को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि सैलाब से पाकिस्तान के वसी हिस्से तबाह हुए हैं और अब तक 3 करोड़ 30 लाख अफराद मुतासर हो चुके हैं। सैलाब से 1100 से ज़्यादा इंसानी जानों का भी ज़िया हुआ और 1600 से ज़्यादा अफराद जख्मी हुए हैं।
उन्होंने कहा कि बारिशों और सैलाब से माल मवेशियों और अमलाक को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। सफीर पाकिस्तान ने कहा कि कैनेडियन वजीर बराए बैनुल-अक़वामी तरक्की हरजीत सजन ने इब्तदाई तौर पर पाकिस्तान में सैलाब ज़दगान की मदद और बहाली के लिए 5 मिलियन कैनेडियन डॉलर की इमदाद का ऐलान किया है, जिस पर पाकिस्तानी अवाम कैनेडियन हुकूमत और अवाम के शुक्रगुजार हैं। ज़हीर चुंजुआ ने कहा कि कनाडा में मुकीम 5 लाख पाकिस्तानियों को भी सैलाब मुतासरीन की इमदाद करनी चाहिए। और यहाँ आपको बताएं कि आलमी बरादरी की जानिब से सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान की फराहमी जारी है। मुत्तहिदा अरब अमारात से तीसरा तैयारा इमदादी सामान लेकर इस्लामाबाद पहुंच गया। मुत्तहिदा अरब अमारात के हुकाम ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को सैलाब मुतासरीन के लिए 20 तैयारे भेजने की यकीन दहानी कराई है। रिपोर्ट करेंगे रिजवान आरिफ। मुख्तलिफ मुल्कों की जानिब से सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान की फराहमी जारी है। इमदादी सामान में खैमे, खुराक, अद्वियात और दीगर अशिया ज़रूरिया शामिल हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात सैलाब मुतासरीन के लिए 3000 मैट्रिक टन से ज़ायद इमदादी सामान पाकिस्तान को देगा। इमदादी सामान की खेप को नूर खान एयर बेस रावलपिंडी पर वफाकी वजीर कमर जमान कायरा के हवाले किया गया। इस मौके पर PTV न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कमर जमान कायरा ने कहा कि पाकिस्तान में शदीद बारिशों और सैलाब से वसी पैमाने पर नुकसान हुआ है। मुश्किल की इस घड़ी में अपना रवायती रिश्ता निभाया है। UAE और पाकिस्तान के दरमियान बहुत करीबी ताल्लुक़ है। वो रिश्ता जो हमारे आबा ने और इनके आबा ने शुरू किया, उसको हर आने वाले चैलेंज में ये रिश्ता हमारा मजबूत हुआ है। पाकिस्तान को जब भी कोई मुश्किल घड़ी आई है, वो इकॉनमी की मुश्किल हो, वो पाकिस्तान की दिफाई मुश्किलात हों, वो पाकिस्तान, तो UAE ने हमेशा सफारती सतह पे हमेशा हमारा साथ दिया है। मुतासरीन की मदद और बहाली के लिए हर मुमकिन वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं। आलमी बिरादरी भी मुतासरीन से यकजहती कर रही है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुत्तहिदा अरब अमारात के हुकाम का राब्ता हुआ है। UAE की जानिब से 20 तैयारों पर इमदादी सामान भेजने की यकीन दहानी कराई गई है। जापान ने सैलाब ज़दगान की मदद के लिए पाकिस्तान को इमदाद फराहम करने का ऐलान किया है। जापान की जानिब से इमदादी सामान का पहला जहाज 30 अगस्त को जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची पहुंचेगा। जापान हुकूमत पाकिस्तान के साथ मिलकर इस चैलेंज पर काबू पाने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत करेगा। चीन से भी 2 तैयारे इमदादी सामान लेकर पाकिस्तान आएंगे। बहरीन ने भी सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान भेजने का ऐलान किया है। रिजवान आरिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा आज सवात में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा कर रहे हैं। उन्हें इलाके में रिलीफ और रेस्क्यू सरगर्मियों के हवाले से ब्रीफिंग दी जाएगी। आर्मी चीफ को कुमराट, कालाम और गिरदनवाह में फंसे हुए सयाहों को रेस्क्यू करने के हवाले से भी आगाह किया जाएगा। सैलाब से मुतासरा मुख्तलिफ इलाकों में 82 जगहों पर हेलीकॉप्टर्स के जरिए रिलीफ और रेस्क्यू कार्रवाइयाँ की गईं। गुज़श्ता 24 घंटे में 27 मकामात पर सैलाब में फंसे 316 अफराद को निकाल दिया गया। 30 टन से ज़ायद राशन और दीगर अशिया ज़रूरिया भी फराहम की गईं। मुख्तलिफ इलाकों में 3540 राशन के थैले और 250 खेमे तकसीम किए गए। 51 फ्री तिब्बी कैंपों के जरिए 33,025 मरीजों का इलाज किया गया। आर्मी एयर डिफेंस कमांड हेडक्वार्टर्स की सरबराही में आर्मी फ्लड रिलीफ कोऑर्डिनेशन सेंटर कायम कर दिया गया है, जो कि पाक फौज के तमाम ज़ेली इदारों के जरिए रिलीफ और रेस्क्यू सरगर्मियों को मॉनिटर कर रहा है। मुल्क भर में 217 से ज़्यादा मकामात पर सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए अशिया ज़रूरिया इकट्ठा करने के लिए कैंप्स लगाए गए हैं। तमाम फॉर्मेशंस की जिम्मेदारी है कि वो इन इलाकों में अशिया को इकट्ठा करके सैलाब मुतासरीन तक पहुँचाएँ। अब तक 122 टन से ज़ायद अशिया खुरोनोश, जिनमें आटा, दालें, चीनी और 6 टन के करीब दीगर ज़रूरी अशिया शामिल हैं। खैमे, कंबल, रज़ाइयाँ, कपड़े, सोलर लाइट्स, बिस्तर और बड़ी तादाद में अद्वियात भी जमा कर ली गई हैं। तुर्किया से इमदादी अशिया पर मुश्तमिल 7 मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स कराची पहुंच चुके हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात से 3 मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स नूर खान एयरबेस रावलपिंडी पहुंच चुके हैं। चाइना से 3000 खेमों पर मुश्तमिल 2 एयरक्राफ्ट और जापान से खेमों और मलबूसात की बहुत बड़ी खेप कराची पहुंच रही है। कनाडा ने 5 मिलियन अमरीकी डॉलर, बरतानिया ने 15 लाख पाउंड्स और आज़रबाईजान ने 2 मिलियन अमरीकी डॉलर की इमदाद देने का ऐलान किया है। नाज़रीन, सिंध के सैलाब से मुतासरा मुख्तलिफ इलाकों में पाक फौज और सिविल इंतजामिया की इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। मुतासरा मकामात से लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। मज़ीद तफसीलात इसी हवाले से आप
आपसे आगाह करेंगे आपको, और आपको ये बताते चलें कि सिंध के सैलाब से मुतासरा मुख्तलिफ इलाकों में पाक फौज और सिविल इंतजामिया की इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। मुतासरा मकामात से लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। सिंध के मुख्तलिफ इलाके जो हैं वो सैलाब से मुतासर हुए हैं और बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर तबाहियाँ हुई हैं। जबकि आपको ये बताते चलें कि इसके बाद जो इमदादी सरगर्मियाँ हैं उनका आगाज़ फौरी तौर पर ही कर दिया गया था और ताहाल ये सरगर्मियाँ जारी हैं। मुख्तलिफ जो महकमे हैं वो अपनी अपनी जो इमदादी सरगर्मियाँ हैं उसमें मसरूफ़ हैं। मुतासरा मकामात से लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल भी किया जा रहा है। बारिशों से सिंध शदीद मुतासिर हुआ है और इमदाद बहाली की कार्रवाइयाँ जो हैं वो ताहाल जारी हैं, लेकिन सैलाब के पानी की वजह से इसमें मुश्किलात पेश आ रही हैं। मुतासरा इलाकों में पाक फ़ौज और जो मुतल्लिका महकमे हैं वो बहाली के काम में इस वक्त मसरूफ़ हैं और सैलाबी पानी दादू के मुख्तलिफ इलाकों के अतराफ़ में भर गया है, जबकि कंबर शहर को भी इससे ख़तरा है। हमारे साथ लाइन पर हमारे नुमाइंदे शिराज अली डाहरी इस वक्त मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। शिराज, हमें तफसीलात से आगाह कीजिएगा इस हवाले से। में इस वक्त सैलाबी सूरत हाल है और दिन ब दिन जो कशीदा जो सूरत हाल सैलाबी है वहाँ पे इजाफ़ा हो रहा है। खुसूसन मैं आपको बताऊं कि ये हालिया बारिशों के बाद जो सैलाबी पानी में इजाफ़ा हुआ दरिया सिंध में गुड्डू बैराज पे और दूसरे बैराजों में, और ख़ास कर जो सैलाबी रेलें हैं वो इस वक्त सिंध के मुख्तलिफ़ हिस्सों में शहरों में जो है नुकसान पहुंचा रहे हैं। आज मैं आपको बताऊं कि जो खुसूसन सैलाबी पानी जो काछो से बलूचिस्तान के जो पहाड़ी सिलसिले से ज़ोर पकड़ता हुआ पहुंचा है वो जूही दादू के इलाके में करीबी पहुंच गया है। और दादू के जो शहर हैं मेहड़, केन शाह और खैरपुर नाथन शाह, तो उनके भी जो है उनको भी शदीद ख़तरात लाहत हो गए हैं। कंबर शहदाद कोट का जो रास्ता है वो मुकम्मल तौर पर ज़ेर आब आ गया है और वहाँ का ज़मीनी राब्ता जो मुनक़ता हो गया है दूसरे मेन सड़कों से, जबकि कंबर शहदाद कोट का जो मुलहका इलाका है वो भी मुसलसल पानी की लपेट में है। इमदादी सूरत हाल से मैं आपको बताऊं काफ़ी सिंध के तकाम लाड़काना और सखर डिवीज़न जो है वो शदीद मुतासर हुई है। मीरपुर ख़ास डिवीज़न भी शदीद मुतासर सैलाब से हुई है। सांगड़ का इलाका मुकम्मल जो है चारों तरफ से जो है सेम नालों ने उन्हें पानी में लोग वहाँ पे फंसे हुए हैं। सिर्फ एक सड़क जो है वो मौजूद है। मुख्तलिफ़ मकामात पर जो है गढ़ी यासीन में आपको बताऊं कि शिकारपुर का इलाका गढ़ी यासीन है, वहाँ पे भी ताल का जो है अबड़ा गोट है, वहाँ पे भी काफ़ी जो है पानी है और तमाम देहात जो हैं वो इस वक्त ज़ेर आब हैं। मुख्तलिफ़ इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं, लेकिन पानी अपनी रास्तों पर गुज़र रहा है। मुख्तलिफ़ सड़कें ज़ेर आब आती जा रही हैं, देहात मुकम्मल ज़ेर आब हैं। पाक फ़ौज की, सिविल इंतज़ामिया की, NDMA की जो है मुसलसल कार्रवाइयाँ जारी हैं। लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है और ख़ास करके अब जो सिचुएशन, क्योंकि नवाबशाह के करीब दौड़ है, यहाँ से मेहरान हाईवे है, नेशनल हाईवे भी इफेक्ट हो रहा है। मेहरान हाईवे मुख्तलिफ़ मकामात पर ज़ेर आब है, वहाँ से बंद है और 7 के करीब और जूही और दादू के करीब जो है वो भी सैलाबी पानी के जो बड़ा रेला है वहाँ से गुजर रहे हैं। तो गुड्डू बैराज, सखर बैराज पे भी इस वक्त जो है इंतहाई ऊँचे दर्जे का इस वक्त सैलाब है और पानी में इजाफा वहाँ पे हुआ था। लेकिन बारिशें तो कम हो गई हैं, बारिशें ख़त्म हो गई हैं, लेकिन जो सैलाबी पानी है इस वक्त जो सेम नालों की सूरत हाल है, बदीन की मैं आपको बताऊं, सांगड़ की बताऊं और दूसरे इलाकों की, तो वो कुछ इलाके आहिस्ता आहिस्ता जो पानी है मुख्तलिफ़ इलाकों में जा रहा है और मज़ीद जो है कुछ शहरों को ख़तरा है। ख़ास करके कंबर शहदाद कोट को ख़तरा है, जूही, मेहड़, दादू को ख़तरा है, क्योंकि वहाँ पर भी बंद बांधे गए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया शिराज अली डाहरी, आपका सिंध से आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अभी बढ़ेंगे आगे और आपको बताएं कि सवात में पाक फौज की जानिब से मुतासरीन सैलाब के लिए इमदाद का सिलसिला जारी है। कालाम और दीगर पहाड़ी इलाकों में फंसे मकामी लोगों और सयाहों को हेलीकॉप्टर्स के जरिए रेस्क्यू किया जा रहा है। मज़ीद तफसीलात के लिए हमने रब्ता किया है अपने नुमाइंदे शौकत अली से, उनसे इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। शौकत, हमें मज़ीद अपडेट कीजिएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सैयद शरीफ एयरपोर्ट पर। यहाँ पर सैलाब ज़दगान के लिए रेस्क्यू किया जा रहा है, जो मदियन, बहरीन, कालाम, उत्तर उशू से लोग बज़र हेलीकॉप्टर यहाँ सैयद शरीफ एयरपोर्ट पहुँचाए जाते हैं और उनमें फिर अशे खुर्दनोश, दवाइयाँ वगैरह तकसीम की जाती है। इसमें पाक फौज का ख़ास जो है किरदार है जो अदा कर रहे हैं। पाक फौज के साथ साथ मुकामी तंजीमें भी इसमें पेश है। जी बहुत शुक्रिया शौकत, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, लोधरा में पाकिस्तान आर्मी की तरफ से सैलाब से मुतासर इलाकों के आवाम की इमदाद और बहाली के लिए इमदादी कैंप लगाया गया है। यहाँ शहरियों की एक बड़ी तादाद अतियात भी जमा करवा रही है। तफसील के लिए देखिए अब्दुल्ला डाहा की रिपोर्ट।
जी बिल्कुल, सैलाब से मुतासरा इलाकों के अवाम की इमदाद और बहाली के लिए लोधरा में पाकिस्तान आर्मी की तरफ से इमदादी कैंप लगाया गया है, जहां शहरियों की बड़ी तादाद अतियात जमा करवा रही है। पाकिस्तान आर्मी के इमदादी कैंप में लोधरा की अवाम बड़ी तादाद में खाने पीने की चीज़ें जिनमें पकाने का तेल, घी, चावल, आटा, दालें, खजूर और मिसाले जात शामिल हैं, अतिया कर रहे हैं। मुश्किल की इस घड़ी में शहरियों का जज्बा काबिल दीद है। पूरे मुल्क में जो है वो सैलाब आया हुआ है, पूरा मुल्क जो है वो इस टाइम बड़ी परेशानी की हालत में है। पाक आर्मी की तरफ से मेन चौक में कैंप लगाया गया है। मैंने अपने हस्ब तौफीक जो है यहाँ पर हिस्सा मिलाया और मुझे मालूम है कि ये जो मेरी तरफ से जो हिस्सा मिलाया गया है ये मुतासरीन के पास पहुँच जाएगा। लोधरा शहर में रिक्शा चलाता हूँ और जो मैं कमाता हूँ उसका जो हिस्सा बनता है वो मैं हर महीने निकालता हूँ, और जो मैंने अपना निकाला हुआ है वो मैं भाइयों के पास, पाक आर्मी के पास लेके आया हूँ। सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए आए हैं। हमें पाकिस्तान आर्मी पे इतबार है और हमें पता है कि ये उन तक पहुँचेगा। पाकिस्तान आर्मी की तरफ से लगाए जाने वाले इमदादी कैंप में अब तक 2 ट्रक सामान इकट्ठा किया गया है, जो सिंध के मुतासरीन को भिजवाया जाएगा। पाक आर्मी की तरफ से सैलाब से मुतासरा अफराद की मदद के लिए आर्मी हेल्पलाइन भी कायम की गई है, जिस पर किसी भी जगह से सैलाब से मुतासरा अफराद की इमदाद के लिए रकम जमा कराई जा सकती है। शहरी UN 1135 पर कॉल करके मुल्क भर से किसी भी जगह से नकद रकम और अतियात जमा करवा सकते हैं। मुसीबत की इस घड़ी में सैलाब से मुतासरा अपने भाइयों की इमदाद के लिए पाकिस्तान आर्मी रेस्क्यू और रिलीफ के साथ इमदादी कामों में भी मसरूफ़ है। ठीक है नाज़रीन, आपको बताएं कि मुल्क के दूसरे अजला की तरह ज़िला रहीम यार खान ने भी पाक फ़ौज की जानिब से सैलाब ज़दगान के लिए इमदादी कैंप्स लगाए गए हैं, जहां शहरियों की बड़ी तादाद अतियात जमा करवा रही है। तफसील हमारे नुमाइंदे अशफाक अहमद से जानते हैं। मुल्क भर की तरह ज़िला रहीम यार खान में भी सैलाब से मुतासरा अवाम की अमदाद और बहाली के लिए पाकिस्तान आर्मी की जानिब से कैंप लगाकर अमदाद इकट्ठी करने का सिलसिला 3 रोज़ से जारी है। अमदादी कैंप में ज़िला रहीम यार खान की आवाम बड़ी तादाद में अतियात जमा करवा रही है। पाकिस्तान आर्मी की जानिब से लगाए गए कैंप में रहीम यार खान की आवाम खुश्क खुराक, आटा, घी, चावल, दीगर खाने पीने की अशिया अतिया कर रही हैं। आर्मी जो है ना, उसने हमेशा पाकिस्तान को जब बहुत बुरे हालात में सबसे पहले आर्मी ने ही अप्रोच किया है, अपना फ़ायदा नुकसान देखे बगैर। सो तभी मुझे आर्मी प्रेफरेबल लगी, बिकॉज आई नो कि उन लोग वो प्रॉपर तरीके से उनको पहुंचाएंगे जिनको ज़रूरत है। शहर में कैंप तो और भी लगे हुए हैं, लेकिन आर्मी एक ऐसा अदारा है जिस पे हर बच्चा, बूढ़ा, जवान एतमाद कर सकता है। हमें पता है हम जो अपनी एड दे रहे हैं वो जो मुतासरी उन तक पहुंच सकती है। पाकिस्तान आर्मी की जानिब से फ्लड रिलीफ फंड भी कायम किया गया है, जिसमें मुल्क भर से शहरी अपनी रकूम इसमें जमा करवा सकते हैं। मुसीबत की इस घड़ी में रहीम यार खान के शहरियों का जज्बा काबिल फ़ख्र है। नाज़रीन, बलूचिस्तान, सिंध और जनूबी पंजाब के सैलाब से मुतासरा इलाकों में जारी रिलीफ और बहाली के ऑपरेशन के बाद सूबा खैबर पख्तूनख्वा में भी पाक फ़ज़ाइया का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। खैबर पख्तूनख्वा के गाँव खेशकी और नौशहरा कलां से 800 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि रसालपुर के फील्ड कैंपों में 1400 अफराद को रखा गया है। कैंप में मुफ्त तिब्बी सहूलियात, खाना और रिहाइश फराहम की जा रही है। वादी नलतर में पाक फ़ज़ाइया की जानिब से मुफ्त राशन और तिब्बी इमदादी कैंप भी कायम किया गया है। एयर मार्शल हामिद राशिद अंधावा और एयर वाइस मार्शल मुईद खान ने सैलाब से मुतासरा इलाकों का फ़ज़ाई जायज़ा लिया। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर फूड पैकेट्स 924 राशन पैकेट्स ज़रूरतमंद ख़ानदानों में तकसीम किए गए। PAF के फील्ड हस्पतालों में भी मेडिकल टीम्स ने 804 मरीजों को मुफ्त इलाज और अतियात की सहूलियात फराहम की। पाक फ़ज़ाइया की इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीमें सैलाब से मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। कोर कमांडर रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने सैलाब से शदीद मुतासरा कोहिस्तान का दौरा किया है। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने रिलीफ सरगर्मियों में मसरूफ जवानों से मुलाकात की। कोर कमांडर ने सैलाब से मुतासरा लोगों के लिए जवानों की रिलीफ सरगर्मियों को सराहा। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल सईद अहमद ने सैलाब से मुतासरा इलाकों लाड़काना, नौशहर फैरोज, खैरपुर, शाहजिलानी और शहदाद कोट का दौरा किया। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर कराची को मुतासरा इलाकों में रिलीफ और रेस्क्यू सरगर्मियों से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी गई। कोर कमांडर कराची ने रिलीफ और रेस्क्यू सरगर्मियों को सराहा और मुतासरा इलाकों में हर मुमकिन मदद की हिदायत की। बेहिसाब तबाही, पाकिस्तान में तारीख का बदतरीन सैलाब, कोई अपनों से बिछड़ा तो किसी का घर उजड़ा। सैलाबी रेलों में बस्तियां बह गईं, सैलाब ने खेतों की हरियाली छीन ली,
किसानों के चेहरों से खुशहाली नोच ली। वज़ीर-ए-आज़म की कौम से अतियात की अपील, हाथ बढ़ाएं, मुश्किल में साथ निभाएं। बेघर सैलाब ज़दगान आपकी इमदाद के मुंतज़िर। अपने अतियात दिल खोलकर वज़ीर-ए-आज़म रिलीफ फंड में जमा कराएं। नाज़रीन, डेरा गाजी खान डिवीजन की कोहे सुलेमान रेंज में मूसलाधार बारिशों और रोद कोहियों ने डेरा गाजी खान और राजनपुर के मुतादिद इलाकों को शदीद मुतासर किया है। इंतजामिया की जानिब से रिलीफ ऑपरेशन जारी है। हमारे नुमाइंदे फरहान मिर्जा इस वक्त राजनपुर की तहसील जामपुर में मौजूद हैं। फरहान, बताइएगा रोद कोहियों से मुतासरा तहसील रुझान और फाजिलपुर की क्या अपडेट है आपके पास, और साथ ही साथ कोहे सुलेमान रेंज में बारिशों की अब क्या सूरत हाल है? डेरा गाजी खान और राजनपुर इजला का 50% एरिया कोहे सुलेमान पर मुश्तमिल है। ये पहाड़ी सिलसिला अफ़गानिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के साथ मुंसलिक है, और जब भी यहाँ पर तेज़ बारिशें होती हैं, बारिश की सूरत में जो पानी जो है वो सैलाबी रेले की शक्ल में राजनपुर और डीजी खान की तरफ आता है और अपना रास्ता बनाते हुए दरियाए सिंध में जाकर गिरता है। इस दफ़ा इंतहाई गैर मामूली बारिशों की वजह से जो सैलाबी कैफियत पैदा हुई वो कोहे सुलेमान से आने वाले छाछड़ और कहा सुल्तान के जो सैलाबी रेले जो थे उन्होंने ज़िला राजनपुर को शदीद मुतासर किया। ज़िला राजनपुर की तहसील जामपुर और फाजिलपुर जो है वो इससे शदीद मुतासर हुई है। फाजिलपुर शहर की अगर हम बात करें तो वहाँ तकरीबन 80% रकबे के ऊपर जो है वो ज़ेरे आब आ गया है। स्कूलों, कॉलेजेस और इवन के हस्पताल जो है वहाँ पर भी कई फुट जो है वो पानी अभी तक मौजूद है। राजनपुर की तहसील रुझान एक 3 सूबों के संगम पे मौजूद है। तकरीबन 10 लाख से ज़ायद इस तहसील की आबादी है और ज़्यादातर यहाँ पर बलोच रहते हैं। ज़ुबान भी यहाँ पर बलोची बोली जाती है। 80% से ज़ायद रकबा रुझान का जो है वो ज़ेरे आब आ गया है। लोग इंतहाई मुश्किलात का शिकार हैं और बेसरो समानी की हालत में हैं। और ख़ास तौर पर जब हमारी यहाँ पर लोकल जो वहाँ के लोग थे उनसे जो बात हुई, उनका कहना यही है कि अब तक जो है बोट्स की वहाँ पर अशद ज़रूरत है। अगर बात की जाए रिलीफ कैंप्स की तो 31 से ज़्यादा रिलीफ कैंप्स बनाए गए हैं राजनपुर के अंदर, जिसमें 4000 से ज़ायद सैलाब मुतासरीन इस वक्त मौजूद हैं। और अगर हम रेस्क्यू की बात करें तो इन इलाकों में 32,000 से ज़ायद लोगों को रेस्क्यू की मदद से महफूज मुकाम पर पहुँचाया गया। पाक फ़ौज, रेस्क्यू 112, ज़िले इंतज़ामिया, तमाम इदारे जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि तमाम जो ऐसे लोग जो सैलाब मुतासरीन जो हैं उनको फौरी तौर पर रिलीफ मुहैया किया जाए। जी शुक्रिया फरहान मिर्जा। नाज़रीन, डेरा गाजी खान में कोहे सुलेमान के पहाड़ी सिलसिले से आने वाले सैलाब से आवाम के जानी और माली नुकसान के अलावा गंदम के सरकारी गोदाम भी तबाह हो गए हैं। सैलाब ज़दगान के मसाइल और मजीद तफसीलात के लिए हमने राब्ता किया अपने नुमाइंदे सादिक बलोच से। सादिक, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, डेरा गाजी खान में कोहे सुलेमान के जो पहाड़ी सिलसिले पे शदीद बारिशों से सैलाब आया था 26 जुलाई को, उस सैलाब की तबाही ने इस पूरे खित्ते में एक मुश्किल वक्त आयद कर दिया है, जिसकी वजह से जो सैकड़ों ख़ानदान हैं वो अपने घरों से बेघर हो चुके हैं। उसके साथ साथ अगर मेरे पीछे मेरा कैमरामैन दिखा सके, ये देखिए ये एक बस्ती तबाह है। उसके बाद ये गंदम का बहुत बड़ा गोदाम है, हुकूमत की तरफ से यहाँ गंदम जमा की गई थी, लेकिन ये सारी करोड़ों रुपए की गंदम है वो ख़त्म हो चुकी है, वो तबाह हो चुकी थी। इसके साथ साथ ये हम एक ऊँची मकाम पर खड़े हैं जहाँ मुख्तलिफ कैंप लगे हैं और लोगों ने पनाह ले रखी है, जबकि इसके पीछे अगर जाएँ तो बहुत सारे सैकड़ों देहात ऐसे हैं जिनके रास्ते बिल्कुल नहीं हैं। वहाँ लोग पानी के अंदर जो ऊंचे मकामात हैं, टीले हैं, वहाँ उन्होंने पनाह ले रखी है। फसलें भी तबाह हो चुकी हैं और लाइफ स्टॉक में बहुत सारा हज़ारों जानवर जो हैं कुछ बह गए, कुछ मर गए। लिम्पी स्किन बीमारी थी, उससे पहले भी थी, अभी तक है। ये जो बड़े बड़े नुकसान हैं उन्होंने इन लोगों को बिल्कुल ज़ीरो कर दिया है। जीना मुश्किल है, दवा इलाज के लिए भी इन लोगों को ज़रूरत है। अगर इन्होंने इलाज के लिए जाना है तो कैंप है जहाँ जाएंगे। दूसरा, जो हुकूमत पाकिस्तान ने, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने 25,000 का ऐलान किया था जो सैलाब ज़दगान को मिल रहा है। कुछ दीगर खबरें भी यहाँ पर शामिल करेंगे। आपको बताएंगे डेरा गाजी खान में पंजाब रेंजर्स की जानिब से सैलाब से मुतासरा इलाकों के आवाम की इमदाद और बहाली के लिए इमदादी कैंप लगाया गया, जहाँ शहरियों की बड़ी तादाद अतियात जमा करवा रहे हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसील जान लेते हैं ज़हूर कुरैशी से। ज़हूर, अपडेट कीजिएगा। हालिया बारिशों की वजह से डेरा गाजी खान, राजनपुर और तौसा शरीफ में बड़े पैमाने पर सैलाब की वजह से लाखों लोग जो है बेघर हो गए। पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब की जानिब से शहर डेरा गाजी खान में रिलीफ कैंप जो है कायम किया गया है, जिसमें शहरी जो है ना उसमें जो है ना अपने एहतियात जमा करा रहे हैं, जिसमें खाने पीने की चीज़ें, खुश्क राशन है,
घी, चीनी, आटा, दाल और इसके अलावा खुश्क दूध वगैरह इसमें शामिल है। और मुखैर हजरात भी बड़े पैमाने पर इसमें अपना हिस्सा डाल रहे हैं। और डेरा गाजी खान की दीनी और मजहबी मुख्तलिफ जमातें शहर डेरा गाजी खान में रिलीफ कैंप का काम जारी रखे हुए हैं। जिंदगी की दूसरी ज़रूरियात चीज़ें भी जो है ना अपने एहतियात जो है ना जमा करवा रहे हैं। बहुत शुक्रिया ज़हूर कुरैशी, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। सैलाब के मुतासरीन में हिंदू बरादरी की सरगर्मियां भी जारी हैं। हिंदू बरादरी बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी के तहत अपने पाकिस्तानी भाइयों की भरपूर मदद कर रही है। सैलाब से मुतासरा इलाकों में हिंदू बरादरी खाना भी तकसीम कर रही है। तफसील जानते हैं मिर्ज़ा हसन बेग से। मानसून की बरसात और समंदरी तूफ़ानी ने ठट्टा ज़िले के जिस तरह सैकड़ों गांव डुबो दिए हैं, लोग ज़ेर आब हैं, काफ़ी लोग जो है पानी के अंदर फंसे हुए हैं। काफ़ी को रेस्क्यू के ज़रिए डिप्टी कमिश्नर गजनफर लगारी ने अपनी टीमों के साथ निकाला है और काफ़ी लोग जो हैं आके अपनी मदद आपके तहत सड़क के किनारे बैठे हैं। उन्होंने अपनी कच्ची झोपड़ियाँ बनाई। ऐसे वक्त में इनको जो है राशन और दूसरी ये ज़रूरियात की बहुत सख्त ज़रूरत पड़ी है। जहाँ ज़िले हुकूमत इनकी मदद कर रही है, वहाँ हिंदू पंचायत ने धरियानो मल की क़यादत में ये बेड़ा उठाया है कि तमाम मुतासरीन जो ठट्टा, सजावल, बदीन, टंडो मोखान और आसपास के ज़िला के हैं, यहाँ से लेकर केटी बंदर तक, इधर से खारोचंद तक और गग्गर तक, इस तरफ टंडो हाफिज शाह तक, ये मुतासरीन को पक्का बकाया खाना तीनों टाइम दे रहे हैं। हिंदू बरादरी का कहना यह है कि ज़ात पात से हट कर तमाम पाकिस्तानी हमारे भाई हैं और हम इनके बाद इस मुश्किल में हम इनके साथ हैं। नाज़रीन, सूबा सिंध के ज़िला घोटकी में बारिशों और सैलाब से तकरीबन 13,500 से ज़्यादा ख़ानदान मुतासर हुए हैं, जिनको इमदादी कैंपों में बुनियादी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं घोटकी से बरकत अली। जिला घोटकी के मुख्तलिफ इलाकों में जारी बारिश का सिलसिला इस वक्त थम चुका है। कई घंटों से आसमान बादलों से साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी जो सैलाब मुतासरीन हैं, बारिश मुतासरीन हैं, उनकी मुश्किलात में मजीद इजाफा हो रहा है, इसलिए कि मुख्तलिफ इलाकों में पानी की मौजूदगी की वजह से मच्छरों की अफजाइश में इजाफा हो गया है और पानी की मौजूदगी की वजह से जर का पानी है, पीने का पानी है, वो भी खराब होने लगा है, जिसकी वजह से गैस्ट्रो और मच्छरों से मलेरिया फैलने का खदशा है और लोग इन अमराज में मुब्तला भी हो रहे हैं। इस वक्त सरकारी आदाद और शुमार के मुताबिक जिला भर में 13,400 से जायद खानदान बेघर होकर रिलीफ कैंपों में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। कुछ लोगों को जो टेंट वगैरह दिए हुए हैं उनमें से मैं मुतमिन है और कुछ लोगों को नहीं मिला। कुछ लोग अंदर फंसे हुए हैं, उसको तो कुछ नहीं मिला बिल्कुल भी। बारिश की वजह से तमाम सब्जियों की पैदावार सख्त मुतासिर हुई है, जिसकी वजह से शहरों में सब्जी की किल्लत पैदा हो रही है और काश्तकारों, जमींदारों को उनकी पैदावार न होने की वजह से माली और माशी नुकसान का सामना है। 90% जो सब्जी है हमारी खत्म हो चुकी है। हम जो है सब सब्जियों के ऊपर पानी हो चुका है, फूल सारे गिर गए हैं। सब्जी जेकी गुल किरे थो, बरसात पई आ, कीड़ो वरदो वेंदो आ, माना सब्जी उन्हीं जे वजह महंगी आ। सैलाब मुतासरीन कई मुश्किलात से दो चार हैं, लेकिन बारिश का सिलसिला थम चुका है। यही तवक्का की जा रही है कि जो जिंदगी है, कारवान जिंदगी है, मुख्तलिफ अंदाज में वो जल्द ही शुरू हो जाएगा। बहुत शुक्रिया, तफसीलात से हमें आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, अब रुख करेंगे टंडुवाला यार का, जहां मुख्तलिफ इलाकों से बारिश के पानी की निकासी का अमल मुकम्मल हो गया है, ताहम बहुत से मकामात पर अभी भी पानी मौजूद है और इन्हीं में से एक मोमिन आबाद कॉलोनी है। सुलेमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। सुलेमान, आपके पास क्या तफसीलात हैं इस इलाके के हवाले से? मैं इस वक्त टंडोला यार की तहसील झंडोमरी के दूर दराज गाँव मजनू खास केली और निज़ाम खास केली के दरमियान में मौजूद हूँ। इसके अलावा इसके करीबी तकरीबन 20 के करीब ऐसे गांव हैं जो इस वक्त पानी में डूबे हुए हैं। यहाँ के मकीन का कहना है कि अब तक यहाँ पर कोई ऐसी सर्वे की टीम नहीं आई, कोई इमदादी टीम नहीं आई, कोई डॉक्टरों की मेडिकल कैंप नहीं आई। वो कढ रहा है असांखे हर शइ जी तकलीफ़ है, न खीनू रसियो है, न का शइ रसी है, केर बि न असां वटि रसियो। असीं बचा वठो, धड़नि ते चढ़ियो, शाखुनि जे वाटरनि जे बंधनि ते वेठा आहियूं, असां वटि केर बि न रसियो है। बच्चा बकमाल मरी या गरीब ॼाण किना थी वञो, हा खुजी को पानी कठी जो भा केर को तो सारा बुद्धे, केर को तो बुद्धे। हमारे यहाँ पर बच्चे काफ़ी हद तक बीमार हो चुके हैं, मच्छर की वजह से हम बहुत परेशान हैं और अब तक हुकूमत की इमदाद के मुंतज़िर हैं। ताहम अभी तक हमारे पास कोई ऐसी टीम नहीं आई है।
नौशहरा में दरियाए काबुल में पानी की सतह में कमी आना शुरू हो गई है और इस वक्त दरिया में पानी का बहाव 2,96,000 क्यूसेक तक आ गया है। पानी की सतह कम होते ही लोग वापस अपने घरों को जाना शुरू हो गए हैं। मुतासरीन सैलाब के लिए बनाए गए रिलीफ कैंप्स में बड़ी तादाद में मुतासरीन मौजूद हैं, जहां पर उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना है। मज़ीद तफसील जानते हैं फजल नबी से। जी बताइएगा। नौशहरा में सैलाब की एक बड़ी तबाही के बाद दरिया काबुल में पानी की सतह में बदतरीज कमी आना शुरू हो गई है और इस वक्त दरिया काबुल में पानी का बहाव 2,96,000 क्यूसेक है। इरिगेशन डिपार्टमेंट के मुताबिक शाम तक इसकी सतह में काफी कमी आएगी। जैसे जैसे दरिया पानी की सतह कम होता जा रहा है तो लोग भी वापस अपने घरों को जाना शुरू कर दिया है और इंतजामिया ने उस इलाकों में बहाली का काम भी शुरू कर दिया है। इस वक्त रिलीफ कैंप में मुतासरीन की काफी तादाद मौजूद है और वहाँ भी काफी मुश्किलात भी देखने में आ रहा है। सैलाब से मुतासरा इलाकों में बिजली गैस बहाली अभी तक शुरू नहीं हो सकी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सूबाई सदर अमीर मुकाम भी आज नौशहरा का दौरा करेंगे, जहां पर वो मांकी शरीफ के रिलीफ कैंप समेत नौशहरा के मुतासरा इलाकों का दौरा करके सैलाब का जायजा लेंगे। इस वक्त सैलाब से मुतासरा इलाकों के वो लोग जिनके पास मवेशी है, इनके पास मवेशी के लिए कोई चारा नहीं है, जिसकी वजह से इनको काफी मुश्किलात है। जिला इंतजामिया ने तमाम सरकारी तालीमी इदारों को मजीद 5 दिन के लिए बंद कर दिया है। उधर अपर कोहिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों की वजह से शहराए कुराक्रम को बहाल नहीं किया जा सका है। शहरा की बंदिश के बायस गिलगित बल्तिस्तान का मुल्क के दीगर हिस्सों के साथ ज़मीनी राबता मुनक़ते हो गया है। इस हवाले से मजीद तफसील जानते हैं शमसुर रहमान शम्स की इस रिपोर्ट में। अपर कोहिस्तान के मुकाम ज़िदखाड़ नाले पे शहराए कराक्रम का एक हिस्सा सैलाबी रेले की नज़र होने के बाद ताहाल बहाल न हो सका। जिसकी वजह से जिले के दूरअफ्ताद इलाकों में इमदादी सरगर्मियों में मुश्किलात पेश आने के साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान सूबे का ज़मीनी राब्ता भी कट कर रह गया है। मुसाफिर अपना सामान कंधों पे उठाकर सफ़र करने पे मजबूर हैं। बात यह है कि यह हमारे बदकिस्मती है निज़ाम की कि अभी आज तीसरा दिन है इंतज़ामिया से और दीगर मुतालिका हुकाम से कि इस पर सिर्फ और काम शुरू किया जाए। 3 रोज़ गुजरने के बावजूद इस अहम तरीन बैनुल अक़वामी शाहरा पे जो पाकिस्तान को चीन से मिलाता है, इसकी बहाली हुकूमती खासकर NHA हुकाम की कारकर्दगी पे सवालिया निशान है। ताहम ज़िली इंतज़ामिया ने इस मुकाम पे मुसाफिरों के आराम के लिए टेंट और खाने का आर्जी बंदोबस्त कर लिया है और पुलिस मुसाफिरों की माल व जान की हिफाजत के लिए इन पहाड़ों के बीच पहरेदारी कर रही है। यहाँ से रहते हमारे पुलिस वाले जो मुसाफिर लोग आते हैं, इनकी जान और माल की हिफाजत जिस तरह पुलिस वाले कर रहे हैं, वो होते हैं जो माजूर आते हैं, दीगर इस तरह कोई मरीज़ जख्मी आते हैं उसको हम वागुजार कर लेते हैं। दीगर हमारे पास कोई वसाइल नहीं। अब चूँकि कल हमारे DPO साहब ने यहाँ पे जितने हमारे मुलाजमीन ड्यूटी करते हैं उनको फूड शूट भी तकसीम किया है। यहाँ पे DSC वाले आए थे, उन्होंने वापडे की तरफ से आकर कुछ नक्शे वक्शे ले लिया, तो इसमें 2 दिन गुजर जाएंगे। तो बस ये सिचुएशन है और ये सूरत हाल है हमारी। मुसाफिरों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पे सड़क की बहाली यकीनी बनाया जाए ताकि लोगों को अपने घरों तक रिसाई में आसानी हो। शम्सुर रहमान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, दासू, अपर कोहिस्तान। अस्सलाम वालेकुम। वेदर अपडेट के साथ मैं हूं अब्दुल कदीर। नाज़रीन, बलूचिस्तान के इलाके हरनाई का मुल्क भर से ज़मीनी राबता 10 दिनों से मुनक़ते है। हरनाई कोयटा रोड पर 2 बड़े पुल सैलाब में बह गए। चेपर लिफ्ट के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग के बायस सड़क जगह जगह बैठ गई। हरनाई पंजाब कौमी शाहरा हरनाई सखावी के दरमियान मुख्तलिफ मकामात पर सैलाब में बह गई। हरनाई ता 22 मील तक शाहरा पर पहाड़ों से लैंडस्लाइडिंग के बायस बड़े पत्थर गिरे हुए हैं। महकमा CNW के पास मशीनरी न होने की वजह से ट्रैफिक की बहाली में मुश्किलात का सामना है। हालिया शदीद बारिशों और सैलाब से मुल्क भर में शाहराहों और पुलों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने मुतासरा शाहराहों और पुलों को ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया है, जबकि मुतादिद मकामात पर काम जारी है। तर्जुमान NHA के मुताबिक जनूबी पंजाब में नेशनल हाईवे अथॉरिटी का पूरा रोड नेटवर्क ट्रैफिक के लिए खुला है।
और हरिपुर में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की जानिब से जिला कचहरी में मुतासरीन सैलाब के लिए इमदादी कैंप कायम कर दिया गया है। इस मौके पर लोअर और अपर कोहिस्तान के लिए फंड रेजिंग की गई और अशिया ज़रूरिया की जमा की गई। तकरीब से खिताब करते हुए सदर बार खुर्शीद अजहर एडवोकेट, जनरल सेक्रेटरी वासिफ अली एडवोकेट और दीगर ने कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में बहैसियत कौम हम सबको इत्तेहाद और इत्तफाक का मुजाहरा करते हुए सैलाब से मुतासरा अफराद की मदद का फरीज़ा सर अंजाम देना होगा। और महकमे मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम आज गर्म और मरतूब रहेगा। ताहम कश्मीर, शिमाल मशरक़ी पंजाब, मशरक़ी बलूचिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने के अलावा बाज़ मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। आज रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत नूरपुर थल 40, तुरबत और जोहराबाद 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मुख्तलिफ शहरों की ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की तफसील इस्लामाबाद 35, लाहौर 35, कराची 32, पेशावर 36, कोयटा 32, गिलगित 29, मुजफ्फराबाद 36, मरी 23, दीर 29, चित्राल 30, रावलाकोट 27 और मालम जब्बा में 20 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।